Ma'am, your voice is not coming. मैम माइक ऑफ है। Now, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, okay, ma'am. okay. Yes, So, ma'am. yes, today we are going to learn about the different processes which are involved in recombinant DNA technology. Okay, it should be processes. Okay, and this lesson is your biotechnology principles and processes. Okay, now the task of this recombinant making a recombinant making a recombinant DNA is not very easy, and it is a multi-step process. So we should be aware of how to make a recombinant DNA. Okay, we have already learned about the vectors, the role of vectors in the DNA for making a new recombinant DNA. Okay, and now in today's class we are going to learn about the different processes which are involved for making a new recombinant DNA. Okay, so the first step, okay, the first step which is present in which is used for making a new recombinant DNA, that is the isolation of genetic material. Okay, so the steps, if you have your book, the steps which are involved for this which are involved in process of DNA recombinant technology. The first step is isolation of genetic material. The second one is cutting of DNA at specific location. Once you isolate the genetic material, now you have to cut the DNA at specific location, because you need only the gene of interest. Okay, you don't need the whole DNA, you don't need the whole you don't need the whole plasmid. At in the plasmid area, you need only certain area where the alien piece of DNA can be inserted. So you have to cut the plasmid at that particular location. Similarly, the alien DNA or the gene of interest, you have to cut that alien gene or DNA from the source. Okay, so second step of making DNA recombinant technology is cutting DNA at specific location, right? And the third one is PCR, which is polymerase chain reaction. Okay, in this PCR, what is done? The genetic material which is isolated, which is taken out. Sometimes it is the amount of that genetic material is very, very small. Small means it is less in number. Okay, so we have to increase that amount to number of times, to multiple times, so that the gene of interest becomes higher in number. And this is done by a reaction which is known as polymerase chain reaction. Okay, so this is done just to amplify, multiply the gene of interest. Okay, and the fourth one that is in your book today, I think we will be able to complete only three steps. Therefore, I have written only three steps. The fourth one, which is in your book on page number 203, is insertion of recombinant DNA into the host cell. Okay, once our gene of interest we have made multiple copies. Now we have to add that gene of interest in the vector. Okay, then the fifth one is obtaining the foreign gene product. We have added that foreign DNA in the vector. Now we have to obtain the final product. Okay, so these are the 5 steps which are present in making or in the process of DNA recombinant technology. पहला क्या है? हमें जेनेटिक मटेरियल जहां पे भी है वहां से आइसोलेट करना है. ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल आ गया. अब वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्योर नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं. So we have to isolate the genetic material. Second, once our genetic material is with us, we have to cut that genetic material at specific location. और ये वेक्टर का भी करेंगे और हमारा जो एलियन डीएनए है उसका भी करेंगे. थर्ड स्टेप में क्या आएगा? जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे. फोर्थ क्या है? वी विल
add that alien piece of DNA in the required source of vector और plasmid, और फिफ्थ क्या है, लास्ट में हमको अपना फाइनल जीन प्रोडक्ट जो कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमें निकालना है, या जो एक ट्रांसफॉर्मर है वो हमें एज अ फाइनल जीन प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन करना है. ठीक है. Okay, so today we are going to concentrate only on 3 steps. One is isolation of genetic material, the second one is cutting DNA at specific location, and the third one is PCR. Okay, so shall we start now? I think 30 students are there, so we can start our class. Okay, so in the first process of isolation of the genetic material, why it is necessary to isolate the genetic material? Okay, because you all know that the length of DNA, if we unroll DNA, it is highly coiled molecule. Okay, and because of its higher coiling, it can be fitted inside the nucleus. If you unravel it or if you open it, okay, then its length may go up to 2 meters. Okay, so that much genetic material we don't need. We need only a small piece of DNA which has certain codes for the characters, for the desirable characters. Okay, suppose this whole length is of DNA and the gene of interest which is coding for the particular character. जैसे अभी हमने इसके पहले कौन सा एक कैरेक्टर पढ़ के आ रहे थे बार बार, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसी को ही हम लेते हैं. So suppose this antibiotic resistance is present only in this set of gene. Okay, then we have to only isolate this one. There is no need of the remaining portions of the DNA. Okay, so we have to isolate the genetic material. The second thing is same is the case with vector. Okay, the plasmid acts as a vector. So the plasmid can be a vector, or the bacteriophage, the phage particle can be a good vector. Okay, so the whole plasmid is not needed. Okay, we only need small place where we can add our gene of interest at that particular place. So we have to take out the plasmid from the source. Okay, or we have to take out this extra piece from that particular location. But again, the same thing, this area should be the place where certain code should be there which can attach the foreign piece of DNA. We cannot join the foreign piece of DNA anywhere, because every genetic information has certain codes and has specific location on the DNA, right? Okay, so now it has been seen and you all know, when we have learnt about the biomolecules chapter in class 11th, we have seen along with DNA many substances are present inside the plant, okay, in the plant cell. So the DNA or the gene of interest, this one can be isolated from fungi. हम इसको fungi से isolate कर सकते हैं, ठीक है ना, या हम उसको bacteria से isolate कर सकते हैं, or we can isolate from plant. So accordingly, we have to use certain enzymes to digest the extra substances. Okay, हमें तो केवल अपनी gene of interest निकालनी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, बट हम उसके लिए सोर्स क्या ले रहे हैं, हम एक पूरा प्लांट सेल ले रहे हैं, एक एनिमल सेल ले सकते हैं, फंगाई ले सकते हैं, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया भी ले सकते हैं. ओके, तो हमें पूरे बैक्टीरिया या पूरे प्लांट या पूरे एनिमल सेल की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है ना. देयरफॉर वी नीड अ सेट ऑफ मेनी एंजाइम्स which can digest the extra material which is present along with the DNA. Okay, therefore specific enzymes are present which can digest the specific substances which are present in the source cell, a plant cell, a animal cell or a fungal cell. ठीक है ना. तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, एक ऐसे ही एक सेल का बना दिया है. अब इस सपोज करो ये एक सेल है, इस सेल में
डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा हमारा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस तक तो हम तब पहुंचेंगे जब हम इसकी सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करें। अगर ये फंगाई या प्लांट सेल है तो हमें इसकी सेल वॉल को भी डाइजेस्ट करना है, ठीक है ना। ओके, एम आई ऑडिबल? यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। So we can only take out DNA from the nucleus when we will reach there, okay? And in order to reach there, we have to digest everything which comes in the pathway to reach the nucleus. So if it is a plant cell or a fungal cell, we have to take out the cell wall, okay? So cell wall को digest करना है, then we have to digest the cell membrane, membrane को भी digest करना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, हमें साइटोप्लाज्म को भी डाइजेस्ट करना है, उसमें प्रोटीन्स हो सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने एंजाइम्स के बारे में भी, बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर था उसमें एंजाइम्स का भी टॉपिक था ना। So there we have read about the variety of enzymes. We have variety of enzymes that can digest everything which is present in our body. Okay, means almost everything which is present in our body. So accordingly, we can use that type of enzyme to digest the particular material to reach to the nucleus. Okay, so यहाँ पे एक example मैंने बनाया हुआ है. Suppose it's a fungus, then you all know that the cell wall of fungus is made up of chitin, ठीक है ना. So we have to use a enzyme which is chitinase, या सब उसको चिटिन भी कहते हैं, so chitinase, whatever you can say. So either we can use chitinase or chitinase enzyme to digest the fungus cell wall, ठीक है. If it is a bacterial cell wall, then we will digest it with the help of an enzyme, and the name of the enzyme is lysozyme, ठीक है. बैक्टीरिया के में अगर हम बैक्टीरियल सेल से न्यूक्लियस को डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना, सेल वॉल को. ओके, तो सेल वॉल को कौन डाइजेस्ट करेगा? एन एंजाइम व्हिच इज लाइसोजाइम, ठीक है. And if it is a plant cell, then we have to digest it with the help of a enzyme that is cellulase. Okay, why we are taking cellulase? Because the cellulose is the important carbohydrate which is present in the cell wall of the plant cell. ठीक है, therefore we have to digest the cellulose of the plant cell. Okay, now we have digested the cell wall, the cell membrane. जैसे यहाँ पे सेल वॉल का है, ऐसे there are many enzymes which will digest the cell membrane, but सारी चीजें बुक्स में नहीं है, तो जो है हमें वही पढ़ना है. तो ये हमारा डाइजेस्ट हो गया. मेन एम इज टू डाइजेस्ट द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, इट कैन बी इजीली डाइजेस्टेड. ओके, सेल मेम्ब्रेन्स के लिए हम नॉर्मली लाइपेजेस लेंगे, ओके, क्योंकि लाइपेजेस जो है वो फैट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है ना. तो इस तरह से अकॉर्डिंगली वी कैन टेक मेनी एंजाइम्स टू डाइजेस्ट एवरीथिंग सो दैट वी कैन नाउ रीच द न्यूक्लियस, ठीक है ना. तो अब हम किसके पास आ गए हैं? अब हम आ गए हैं न्यूक्लियस के पास, ठीक है. Right, okay, now we have reached the nucleus, but the nucleus consists of RNA and DNA both, ठीक है ना. न्यूक्लियस के अंदर RNA भी है, DNA भी है, और DNA is compactly arranged with the help of certain proteins. Can you name that protein which help in compact arrangement of the DNA, of the two strands of the DNA inside the nucleus? I know that you still remember that protein. What is the name of that protein? Yes, anyone? Yes, बच्चों, डीएनए को कॉम्पैक्ट, हमने ऑक्टोमर पढ़ा था ना. तो जो डीएनए की कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियस में, तो उसमें Histones. वेरी नाइस, इट इज हिस्टोन. तो उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए को कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना. So they can be histone proteins, they can be non-histone proteins, ठीक है ना. So if DNA is present along with, if and it is always present along with the histone protein,
So this histone protein can be digested with the help of an enzyme which is protease, because protease will act on protein and histone is a type of protein. ठीक है ना? तो अब ये हिस्टोन प्रोटीन को अलग क्यों निकालना है? कौन बताएगा? Why it is necessary to we have reached DNA. Okay, now why it is necessary to remove the proteins from it? कौन बताएगा? Yes, Geetika, are you there? गीतिका, यस, सौरभ, सौरभ है क्या? यस मैम। हाँ सौरभ बताओ, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव दिस हिस्टोन फ्रॉम दिस डीएनए? यस सौरभ। भविष्य, भविष्य आर यू देयर? मैंने I have not opened that chat box because it will minimize my screen. Okay, so I will only hear. Okay, Saloni Priya, are you there? Saloni Priya? Yes, ma'am. हाँ, yes, why it is necessary to remove this histone? Yes, बच्चे जल्दी बच्चा बताओ, मुझे आगे के 2 स्टेप्स और करने हैं। अभी आपकी मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, सो बेटर टू स्पीक। To make the two strands far away from each other. Yes, क्या बोला? Repeat it. Repeat, Saloni. To make the two strands. Ma'am, To make हाँ, to make the two strands far away from each other. Okay, to make the two strands far away from each other, and we don't need protein. We only need the DNA. हमें तो DNA चाहिए ना, तो हमें तो protein तो चाहिए नहीं. Okay, therefore we will digest the protein also with the help of this. Will digest this histone protein and the non-histone protein with the help of enzyme which is proteases, right? Okay, then you all know that within the nucleolus, nucleus में हम पहुंच गए, nucleus के अंदर nucleolus भी होता है, तो nucleolus में क्या present होता है? RNA present होता है. So RNA is digested with the help of an enzyme that is ribonuclease. Okay, so हमने सारी चीजों को digest कर दिया. Now we have only and only DNA. 2 fragments of DNA हमारे पास हैं, दोनों अलग अलग हो गए हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज भी नहीं है. ठीक है ना? नाउ वी विल आइसोलेट. ठीक है ना? ओके, अब ये जो हमारा डीएनए आ गया है, इसको निकालने के बाद द प्यूरिफाइड, यहाँ पे लिखा है प्यूरिफाइड डीएनए. प्यूरिफाइड डीएनए इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज नाउ फ्री फ्रॉम ऑल द अदर थिंग्स, फ्री फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और cell wall or RNA. Nothing is attached to it, only we have extracted DNA. Okay, so we have purified DNA. Now this purified DNA, it is treated with chilled ethanol. ठीक है ना? ये purified DNA को हम क्या करेंगे? Chilled ethanol में डाल देंगे. So when we add this purified DNA in chilled ethanol, what will happen? यहाँ की एक शायद लाइन नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं बोल दूंगी तो आप लिख लेना. Okay, so when we add this purified DNA to chilled ethanol, what will happen? The DNA fragment, the threads of DNA will separate from each other. Okay, and the isolated fine threads can be found in the suspension. जो ethanol का suspension होगा, उसके अंदर हमें डीएनए के फाइन थ्रेड्स दिखाई देंगे. एंड इफ यू ओपन योर दिस पेज नंबर 201, देयर इज अ फिगर. Okay, figure 11.5, DNA that separates out can be removed by spooling, and the process by which this purified DNA can be separated out in the form of fine threads is known as spooling. इसको हम कहते हैं spooling. ठीक है ना? तो बहुत क्लियर डायग्राम नहीं है, बट फिर भी दिख रहा है कि किस तरह से डीएनए के फ्रैगमेंट्स उसमें हैं. ठीक है ना? ओके, और आप और क्लियर डायग्राम्स को दे सकते हैं, बस इमेजेस में डाल देना spooling process. Okay, so you will get the images of the fine DNA fragments.
ठीक है, ओके। नाउ ये तो हुआ, दिस इज ओनली द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेप। आपकी बुक के जो थियोरी पार्ट है इसको मैंने इस तरह से डायग्राम में कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप भी डायग्राम को इस तरह से कॉपी में अगर ड्रॉ कर लोगे, लिखते समय आप इसको उसमें थियोरी में कर लेना, लेकिन इसे इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमने अलग किया है, ठीक है ना। ओके, नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा सा मैं ये उसको टिल्ट कर रही हूँ। यस स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज विजिबल, द होल बोर्ड इज विजिबल ना, इस तरफ का विजिबल है यहाँ का? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ओके। सो नाउ फॉर, अब ये जो हमारा डीएनए आ गया, ये आइसोलेट हो गया, ये प्योर तो हो गया है, बट हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए। हमें डीएनए का क्या क्या चाहिए था, थोड़ा सा चाहिए था ना, जो हमें स्पेसिफिक लोकेशन वाला डीएनए चाहिए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो उसके लिए वही आपका तरीका है जो हमने पढ़ लिया है, दैट वी विल यूज द मॉलिक्यूलर सिजर विच आर नोन एज restriction endonuclease. Okay, so by using the enzyme restriction endonuclease we will cut the DNA as well as vector at specific location, ठीक है ना। तो वेक्टर के डीएनए को और जो हमारा इसका डीएनए है कौन सा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, मतलब जो आइसोलेटेड डीएनए है, उसमें से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डिजायरेबल कैरेक्टर वाला जो जीन है, उसको हमने कट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, when we cut with the help of molecular scissors the strands of vector and the strand of the DNA, many strands are formed। क्योंकि ये हम केवल एक एक को लेके नहीं करेंगे, हम बहुत सारे वेक्टर्स को लेंगे, वेक्टर्स का अलग करेंगे और जो डिजायर्ड जीन है उसका अलग करेंगे ताकि मिक्स नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ ताकि वैसे ही हम रिपीट करेंगे वेक्टर के लिए। सपोज करो हमारा जो डिजायर्ड जीन है, हमने डीएनए का पूरा फ्रैगमेंट लिया, उससे हमने डिजायर्ड जीन को अलग कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। लेकिन हम ये केवल एक ही डीएनए थोड़ी ना नहीं लेंगे, हमने एक ही थोड़ी ना बैक्टीरिया लिया, बहुत सारे बैक्टीरिया लिए, बहुत सारे वायरस से हमने अलग किया है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सो द डीएनए फ्रैगमेंट गेट मिक्स्ड विद ईच अदर। Now we will separate the DNA fragments with the help of gel electrophoresis, ठीक है ना। So after cutting DNA at specific location, we will use the phenomenon of gel electrophoresis, ठीक है ना। Okay, so by using the method of gel electrophoresis, and the gel that we will use is agarose gel, we will keep the separated DNA fragment in well, and we will attach that particular plate of agarose gel with will connect it to positive and negative terminals, and DNA fragment being negatively charged, they will move towards the positively charged according to their sizes, and the different strands or the different fragments of DNA will be isolated। जो हमारे बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट हमारे पास आ गए हैं, वो सब अब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे बाय यूजिंग द फिनोमिनन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, और वो यहाँ पे भी एक्सप्लेन भी नहीं है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ओके, सो यही सेम मेथड वी विल डू विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ऑल्सो। वेक्टर का जब हमने वो फ्रैगमेंट अलग कर दिया है, ठीक है ना, तो जैसे ये वाला मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, ये वेक्टर था, तो वेक्टर का ये वाला फ्रैगमेंट हमने निकाल के अलग कर दिया। अब हमारे पास ये बड़ा वाला फ्रैगमेंट है, ये तो हमें नहीं चाहिए, दिस वन वी डोंट नीड। ओके, ये हमने अलग कर दिया, वी ओनली नीड दिस वन। तो ये जो है नाउ, अच्छा एक और चीज आपको बताई थी, द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वी विल यूज फॉर द जीन, फॉर कटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर कटिंग द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ वेक्टर। ये भी आपको याद रखना है कि हमें एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों के लिए लेना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट to means what is our desirable character, because restriction endonuclease, they are very restricted to particular activity or to the genetic
ports and they have only specific location to cut the vector or the DNA at specific location, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं कि हम कोई सा भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया और हमने इसको कहीं भी कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये वाला लिया है, अब ये हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे, हमने एक ही बैक्टीरिया का थोड़ी ना लिया, बहुत सारे बैक्टीरिया का लिया है। तो इसको भी हम आइसोलेट करेंगे, किससे? बाय द मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये हो गया है अलग। नाउ विल कम टू द थर्ड स्टेप, इट इज 8:32, ओके। So third step, I think I would finish it. Okay, so the third step we are learning about the process which are involved in DNA for making this recombinant DNA technology. So the third step is using the method PCR, which is polymerase chain reaction. And what is basically done in this, the gene of interest, it is amplified many times. हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सारे फ्रैगमेंट्स या सारे वेक्टर्स के फ्रैगमेंट अलग हो गए हैं, हमारे पास हैं, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो क्या है? लेस है। So we have to improve many times, we have to amplify it, we have to make multiple copies, okay, and that multiple copies can be made by the method of PCR, which is polymerase chain reaction, to amplify the gene of interest, ठीक है ना। So the diagram which I have drawn here, this is the same diagram which is in your book का ही same diagram है, ठीक है, okay। अब इसमें क्या कर रहा था, जैसे ये हमारा एक फ्रैगमेंट का है, ठीक है ना। अब जो हमारे जो दोनों फ्रैगमेंट्स हैं वो अनकॉइल हो चुके हैं, बट वो हैं तो साथ साथ ही ना, जुड़े तो हुए हैं, बट वो अनकॉइल हो चुके हैं। मतलब बस वो क्या हो गया कि जो प्रोटीन्स उसमें से निकल गए हैं और अब वो बस स्ट्रेट से हो गए हैं, ठीक है ना। ओके, सो ये जो हैं ये हमारे दोनों फ्रैगमेंट्स है। एंड हियर द शेडेड रीजन, और बुक में आपका कलर पिंक, आई थिंक यस पिंक color, the shaded pink region is the gene of interest, ठीक है ना, which we have to amplify, okay। so ये suppose हमारा पूरा DNA है और हमें इतने फ्रैगमेंट को क्या करना है, हमें इसको पहले तो सबसे पहले for making multiple copies we have, the main aim is we have to separate the two strands, okay, and we can only separate the two strands by breaking the hydrogen bond। जो दोनों ही नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी डीएनए के जो दोनों फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा जो आपका पहला स्टेप है दैट इज डीनेचुरेशन, ओके। द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। Okay, so what is done in denaturation? In denaturation, the strands of DNA, they are subjected to very high temperature, ठीक है। इनको क्या है, डीएनए को बहुत हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है, तो जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाते हैं और जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग, ओके। दिस स्टेप इज एनीलिंग। ओके, एनीलिंग इज व्हाट? एनीलिंग हमने क्या करा कि पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों स्ट्रैंड्स को लेके, ऐसे ये एक ही नहीं बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। सो ये लेके हमने इसको क्या रहा, हाई टेम्परेचर पर रख दिया। हाई टेम्परेचर से क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो दोनों का है वो ब्रेक हो गया, ओके, and the two strands get separated. So यहाँ here in this diagram you can easily see okay, now in this here now it is clear. So in this diagram you can see that the two strands have separated from each other, okay, and the process is known as annealing. So what is done in this annealing? In this annealing the temperature is cooled down. टेम्परेचर को क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है, लेकिन बहुत कम पे नहीं। ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इससे थोड़ा सा लेस कर दिया जाता है। और अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप को क्या कहेंगे, एनीलिंग मीन्स कूलिंग डाउन द टेम्परेचर, ठीक है। नाउ व्हेन द टेम्परेचर इज बिकम मोर, मतलब कूलिंग डाउन में भी मॉडरेट से ज्यादा होता है, ठीक है ना।
ओके, सो यहाँ पे अब क्या होता है, एनीलिंग के ये कूलिंग डाउन को एनीलिंग कहेंगे, और इसमें एक और चीज इसमें एक और चीज हम ऐड करते हैं इस प्रोसेस में, एंड दैट इज द एडिशन ऑफ प्राइमर्स। ओके, इसमें अब हमारे दोनों फ्रैगमेंट्स अलग हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैगमेंट्स को अलग करने के बाद वी विल ऐड प्राइमर्स। ठीक है, प्राइमर्स हेयर। What are primers? Primers are small fragments, okay, small fragments of nucleotides which have the complementary bases, okay। तो जैसे हमने इसको अलग किया था, यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो यहाँ इसके जो इधर पे जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाला प्राइमर हम लेंगे, एंड वी विल ऐड प्राइमर इन दिस प्रोसेस ऑफ एनीलिंग। तो कूलिंग के बाद हम प्राइमर जो हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं लैब में, वो प्राइमर्स, और वो प्राइमर्स क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज दे हैव द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस। जो नाइट्रोजनस जो फ्रैगमेंट अलग हुए हैं और इनमें जो फ्री नाइट्रोजनस एंड्स हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्राइमर्स पे होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्राइमर्स है, ये प्राइमर्स को यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। ओके, सो व्हेन द प्राइमर्स are added in the mixture, okay, then the primers attach themselves at specific location। ठीक है, प्राइमर जाके अटैच हो जाएंगे स्पेसिफिक लोकेशन में अकॉर्डिंग टू देयर नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान नहीं रही मुझे बताना, जो हमने दोनों स्ट्रैंड्स के लिए हैं, यू ऑल नो द 5 एंड 3 एंड, ओके, 3 एंड हमें पता है ना इनका, कि इफ वन स्ट्रैंड इज 5 3 then its complementary will be from 3 to 5। ठीक है ना, ओके। सो वी हैव एडेड प्राइमर्स, प्राइमर्स यहाँ पे ऐड हो गया, तो प्राइमर्स का भी जो ये इसमें 3 5 जो एंड्स हैं, दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, दे विल बी ऑपोजिट। हियर इफ इट इज 5 और यहाँ पे 3 है, तो ये जो नया है, नया में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 5। ठीक है ना, और ये होगा 3। तो जो प्राइमर है, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, दे विल अटैच देमसेल्व्स टू ईच ऑफ द स्ट्रैंड, टू ईच ऑफ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। ठीक है ना, अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, वी विल ऐड सर्टेन मोर substances here, and that is DNA polymerase। okay, do you remember the function of DNA polymerase? DNA polymerase is the enzyme which helps in replication of DNA। okay, so you all will know that DNA replication only takes place from 5 to 3 end। ठीक है ना, ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे बनेगा, और ये वाला कैसे बनेगा, अंदर की तरफ 5 to 3। ठीक है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज हमने पहला काम किया प्राइमर्स, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दिया। दूसरा काम किया हमने प्राइमर्स को ऐड कर दिया। प्राइमर्स को इसलिए ऐड करा क्योंकि उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थे उन सीक्वेंसेस के जो कि सेपरेट डीएनए में है, सेपरेटेड डीएनए के स्ट्रैंड्स में है। ठीक है, नाउ वी विल ऐड डीएनए पॉलीमरेज, so that this, by addition of this DNA polymerase enzyme, it will start making new strand of DNA which is known as DNA replication। क्योंकि अब ये आगे तो तब बढ़ेगा ना, ये 5 से 3 तब बनेगा जब ये रेप्लिकेट होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक एंजाइम डालेंगे जिसको कहेंगे DNA polymerase। तो DNA polymerase will help in replication of the 2 separated strands। जो हमारे दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं उनको रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये हम यूज ना करके इसी के जैसा इसका एक एनालॉग यूज करेंगे। मतलब एनालॉग मतलब कि जो इसको बहुत से रिजेंबल करता है, इसी के जैसे इसकी एक्टिविटी होती है, और उसका नाम है टैक पॉलीमरेज, which is isolated
from a bacteria, and the name of the bacteria is Thermus aquaticus. Okay, so ये जो Thermus aquaticus है, ये बैक्टीरिया की ये स्पेशल फीचर है that it can survive under temperature of 90 to 92 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो बैक्टीरिया है ये अपने आप, इसके एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर नहीं होते, एंड इट कैन सर्वाइव अंडर 90 to 92 डिग्री सेंटीग्रेड। Therefore, we have isolated a DNA polymerase enzyme from this particular bacteria। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमने इस वाले बैक्टीरिया का नहीं, अगर हमने कोई और डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर तो अभी हाई है, ये बहुत हाई था, उससे थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, ठीक है ना, एनीलिंग में। तो उस टेम्परेचर पे आपको पता है कि जो एंजाइम में वो क्या हो जाते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी रुक जाती है, तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। इसीलिए वी हैव टेकन अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज from a bacteria which is Thermus aquaticus, so that the DNA do not get denatured and works properly। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने यहाँ से जो आइसोलेट किया है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या डाला, हमने टेम्परेचर हल्का सा कम कर दिया, हमने प्राइमर डाले, हमने डीएनए पॉलीमरेज डाला। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा वाला डाला, टैग पॉलीमरेज डाला। ठीक है, ये हमने कहाँ से आइसोलेट किया, ये आइसोलेट हमने किया थर्मस एक्विटिस। थर्मस एक्विटिकस क्या है, इट्स अ बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव अंडर 90 to 92 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल ऐड हेयर, इसके बाद अब हम यहाँ पे और क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे DNTPS। ओके, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। हमें क्या है, हमें तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स भी तो चाहिए ना, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं हमें वो भी तो चाहिए, तो वही तो, तभी तो ये यहाँ पे अटैच होंगे ना, इसका सोर्स तो चाहिए, हमें एडेनाइन चाहिए, वहां पे थाइमिन चाहिए, ठीक है ना, ग्यूनिन, साइटोसिन, ये सब चाहिए, तो न्यूक्लियोटाइड तो हमें चाहिए कुछ। ओके, सो वी विल ऐड सर्टेन deoxynucleotides also, और DNTPS, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ATP भी चाहिए हमको, और हमें ये नाइट्रोजनस बेसेस भी चाहिए, तो ये सब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सो दैट नाउ आवर DNA polymerase, the process of formation of a new DNA or the replication of DNA takes place। ठीक है, तो ये हैं अब आपके 2 स्टेप्स। नाउ यहाँ पे मैं बोर्ड रख करके एक इसका 3rd स्टेप बना रही हूँ। ओके, सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका ये। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच इज द 3rd स्टेप इज नोन एज एक्सटेंशन। ओके,
सो अगेन वही आपके एंड्स वही हैं, यहाँ पे हमारा एंड था आपका 5, कहाँ गया ये वाला 5' 3', तो ये रहा हमारा 5' 3', नीचे वाला है हमारा, एक मिनट, सॉरी हाँ 5' 3' और नीचे वाला हमारा एंड था 3' और 5', ठीक है ना। ओके, सो ये 5' 3' और नीचे वाला हमारा एंड है 3' 5', ठीक है ना। इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज के वजह से बनता जाएगा या टैग पॉलीमरेज के वजह से बनता जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज. So the process will go on, and this process of addition of the new nucleotide bases to the synthesizing DNA strand is known as extension, because the new DNA strand is getting extended, the length of new DNA fragment is getting extended. Okay, so here this process is known as extension. बस आपको ये याद रखना है कि ऊपर वाले का जो अगर आपका 5' 3' एंड है तो उसका ऑपोजिट नीचे वाले का कर देना. और अब यहाँ पे अगर आप बनाना शुरू करोगे, एक एंड को यहाँ से बनाना शुरू करोगे, दूसरे एंड को यहाँ से बनाना शुरू करोगे. ऊपर वाला 3 है तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे 5 लिख दोगे, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. उसी तरह से इसमें है ये 3 है तो ये वाला 5 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आपका 3 है तो इस तरफ आपका 5 आएगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ पे आपका 3 रहेगा. तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना. Okay, so this is known as extension. Now after extension, ये जो extension का process है, this process is repeated for 30 cycles. ये हम आगे करते जाएंगे 30 times इसको repeat करते जाएंगे. तो इससे क्या होगा, we have a billion of, after 30 cycles we have billion of copies of amplified DNA fragment और द जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गई है वो एम्पलीफाइड आ गई है, या हमारा जो प्लास्मिड है जहां पे हमें जोड़ने हैं सब, उस प्लास्मिड को भी हम इस स्टेप से सारा करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारा हमारे पास एम्पलीफाइड प्रोडक्ट आ जाएगा. नाउ वी हैव द थिंग्स दैट वी कैन यूज एंड इंट्रोड्यूस इनटू द डिजायरेबल प्लेस. अब हम यहाँ से जो डीएनए हमने निकाले हैं वो, और जो हमने प्लास्मिड बनाए हैं वो, इन दोनों को अब हम किसके हेल्प से जोड़ेंगे, वी विल जॉइन देन विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. वो हम कल पढ़ेंगे. 4th and 5th पॉइंट आर स्टिल रिमेनिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अगर कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क, एंड इट इज द टाइम फॉर टेकिंग योर अटेंडेंस. Okay students.